صدیوں پرانی بات ہے، وہ وقت جب زمین پر انسان کم اور جادو زیادہ تھا۔ پہاڑ بادلوں میں چھپے رہتے اور دریاؤں کے کنارے چاندنی میں جگمگاتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک پری پیدا ہوئی جس کا نام تھا نوریزا۔ نوریزا عام پریوں جیسی نہیں تھی، اس کے پر قوسِ قزح کی روشنی سے بنے ہوئے، اس کی آنکھوں میں سبز زمرد جیسی چمک، اور جب وہ مسکراتی تو یوں لگتا جیسے پورا جنگل زندہ ہو گیا ہو۔ جہاں وہ چلتی وہاں پھول خود بخود کھل جاتے، جہاں وہ گنگناتی وہاں پرندے بھی اس کے ساتھ راگ ملاتے۔ مگر نوریزا صرف حسین ہی نہیں تھی، اس کا دل بھی نہایت نرم اور شفاف تھا۔ وہ انسانوں کی مدد کرتی، حالانکہ باقی پریاں ہمیشہ تنبیہ کرتیں، انسان ناشکرے ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ لیکن نوریزا مسکرا کر کہتی تھی، محبت ہر دل کو بدل دیتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی، اس کا نام تھا مایا۔ مایا جو کبھی ایک نیک پری تھی، مگر حسد اور لالچ نے اسے اندھیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ ساری دنیا اس کے آگے جھکے، مگر نوریزا کی نیکی اور روشنی ہمیشہ اس کے کالے جادو کو کمزور کر دیتی۔ مایا اکثر آئینے میں دیکھتی اور بڑبڑاتی، غصے اور نفرت بھرے لہجے میں، یہ روشنی کی پری ایک دن مجھے ختم کر دے گی۔ جب تک یہ آزاد ہے، میرے اندھیرے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دن مایا نے اپنی مکاری دکھائی۔ اس نے نوریزا کو بلا کر میٹھی اور دھوکہ دینے والی آواز میں کہا، میں نے تیرے لیے ایک خاص تحفہ رکھا ہے، یہ انار دیکھ، اس کے ہر دانے میں خوشبو اور طاقت چھپی ہے۔ نوریزا بھولی بھالی تھی، اس نے مسکرا کر انار کو چھوا اور اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ مایا نے اچانک خوفناک منتر پڑھنے شروع کر دیے، انار کھلنے کے بجائے بند ہو گیا اور ایک روشن دائرہ نوریزا کے گرد لپٹ گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ چھوٹی ہو کر انار کے اندر سمیٹ گئی۔ مایا نے زوردار قہقہا لگایا، اس کی آواز خوف سے جنگل میں گونج اٹھی۔ اب تو میری قیدی ہے، جب تک یہ انار سلامت ہے تو کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ یوں نوریزا صدیوں تک اس انار میں قید رہی، اس کی آواز بس انار کی ہلکی جھنکار میں دب کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں کی روشنی انار کے دانوں میں قید ہو کر چمکتی رہی۔ مایا جب نوریزا کو انار میں قید کر چکی تو اس نے سوچا، اگر یہ انار پریوں کی وادی میں رہا تو ایک دن کوئی نیک دل پری اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ اس نے اپنے جادو سے انار کو انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ وہ ایک قدیم درخت کی شاخ سے لٹک گیا۔ چونکہ اس انار میں جادو اور نوریزا کی روشنی چھپی تھی، وہ درخت ہمیشہ جگمگاتا رہا۔ انسان اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر اس کی روشنی اور پراسرار سرگوشیوں نے سب کو ڈرا دیا۔ یوں یہ انار نسل در نسل ایک راز اور خوف کی نشانی بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، موسم بدلے، بادشاہ بدلے، شہروں کے نقشے بدلے، مگر وہ انار کا درخت ویسے ہی جگمگاتا رہا۔ اس کے بیچ میں لٹکا ہوا وہ خاص انار جس کے اندر نوریزا قید تھی، آج بھی روشنی بکھیرتا تھا۔ لوگ اکثر اس درخت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب نہ جاتا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ انار جنات کا خزانہ ہے، جو اسے توڑنے کی کوشش کرے گا وہ مر جائے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس انار کے اندر ایک قیدی پری صدیوں سے آزادی کا انتظار کر رہی تھی۔ نوریزا کی آواز اب بھی کبھی کبھی نرم جھنکار کی طرح سنائی دیتی، جیسے کوئی دور سے گنگنا رہا ہو۔ ایک دن ایک عام کسان جس کا نام زاہد تھا اس باغ میں آیا۔ وہ تھکا ہارا، غریب مگر نیک دل آدمی تھا۔ وہ برسوں سے اپنی زمین پر محنت کرتا، مگر اس کی فصل کبھی پوری نہ ہوتی۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ اگر وہ جگمگاتے انار کے درخت تک جائے اور وہاں سے ایک پھل توڑے تو اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگلی صبح وہ ہمت کر کے نورستان کے باغ میں داخل ہوا۔ جوں ہی وہ اس انار کے درخت کے قریب پہنچا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر خواب کی یاد نے اسے حوصلہ دیا۔
उसने वो रोशन अनार अपने हाथों में लिया। उसी लम्हे अनार के अंदर से एक मधुर सरगोशी सुनाई दी। मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी दुनिया को रोशनी से भर दूंगी। जाहिद खौफजदा तो हुआ, मगर उसने हौसला ना छोड़ा। उसने अपने खंजर से अनार को चीर डाला। अचानक एक तेज रोशनी का धमाका हुआ, जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। रोशनी मद्धम हुई तो उसके सामने एक हसीन परी खड़ी थी। परी के पर कौसे कज़ह की रोशनी से जगमगा रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में सदियों की तन्हाई की झलक। उसने नर्म आवाज में कहा, मैं नौरीजा हूँ। लोग मुझे अनार परी कहेंगे। तुमने मुझे इस जालिम कैद से आजाद किया है। जाहिद हैरान रह गया। उसने अपने माथे को झुकाया और बोला, ए नूरानी हस्ती, मैं तो एक आम किसान हूँ। मैंने ये सब तो ख्वाब के हुक्म पर किया था। अनार परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल नेक है, इसीलिए तुम्हें मेरा आजाद करने वाला चुना गया। उस दिन से जाहिद अनार परी को अपनी बेटी समझने लगा। उसके अपने कोई औलाद न थी और देहात के लोग भी जब उस परी को देखते तो हैरान रह जाते। वो गांव वालों की बीमारियों को ठीक करती, बच्चों को सुलाती, खेतों में पानी के लिए बारिश बुलाती। लोग सब मिलकर उसे प्यार से अनार परी कहने लगे। नौरीजा ने गांव के साथ रहकर इंसानों के दुख सिख बांटना शुरू किया। औरतें उसके पास आती और कहते, बेटी हमारी दुआओं में बरकत डाल दो। बच्चे उसके साथ खेलते और कहते, अनार परी हमें कहानी सुनाओ। यूं रफ्ता रफ्ता अनार परी गांव के दिल की धड़कन बन गई। जाहिद उस पर फख्र करता और कहता, ये मेरी बेटी है, ऊपर वाले ने मुझे ये नेमत दी है। नौरीजा भी खुश थी कि सदियों की कैद के बाद उसे एक घर मिला, मोहब्बत मिली, मगर उसके दिल में एक कोना हमेशा डरता रहा। वो डर जो माया के साए से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अंधेरों के किले में जादूगरनी माया अब भी जिंदा थी। सदियों ने उसके चेहरे को झरियों से भर दिया, मगर उसकी आंखें अब भी काले कोयले की तरह जलती थीं। उसके पास एक आईना था जिसे वो हर रात देखती। एक रात आईने में अचानक रोशनी की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि वो अनार टूट चुका है और उसमें कैद परी आजाद हो चुकी है। माया ने गुस्से से चीख मारी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने सदियों की कैद बर्बाद कर दी और वो फिर आजाद हो गई। उसकी आवाज से उसका महल लरज उठा। उसने अपनी किताब खोली और काले जादू के अल्फाज पढ़ने लगी। मैं इस अनार परी को ढूंढूंगी और इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। नौरेजा को इस रात अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अगर मेरा अंधेरों से सामना होना है तो ए परवरदिगार मुझे हिम्मत देना और ऐसे लोगों को मेरे साथ कर देना जो सच्चाई पर कायम रहें। उसे क्या खबर थी कि उसकी दुआ सुनी जा चुकी है और जल्द ही उसकी जिंदगी में एक शहजादा आने वाला है जो उसकी तकदीर बदल देगा। नौरेजा, जो अब सबके दिलों में अनार परी के नाम से जानी जाती थी, गांव की रोशनी बन चुकी थी। हर कोई उससे प्यार करता था, मगर अंधेरों के किले में बैठी जादूगरनी माया अपनी बदला लेने की तैयारी में मसरूफ थी। माया का पहला हमला एक रात जब गांव सो रहा था, आसमान पर सियाह बादल छा गए। दरख्तों से अजीब सी कराही निकलने लगी। अचानक खेतों में लगे पौधे मुरझा गए। लोगों ने खौफ से अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। अनार परी को फौरन अंदाजा हो गया कि ये सब माया का काम है। वो खेतों में गई, अपने पर फैलाए और नौरी आवाज में कहा, ए अंधेरों, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। उसने अपने हाथ उठाए और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। पौधे फिर से सरसब्ज हो गए, मगर माया का साया कहकहा लगाता हुआ पीछे हट गया। नौरेजा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, माया की आवाज गूंजी। इन दिनों सल्तनत सफीरान का एक बहादुर शहजादा जंगल में शिकार के लिए आया। उसका नाम था शहजादा अयान। वो अपनी तलवार के लिए मशहूर था, मगर दिल के मामले में हमेशा खाली रहा। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक परी का जिक्र कर रहे हैं। उसे तजस्सुस हुआ
परी? इन इंसानों की बेटी? ये कैसी बात है? उसने जाहिद के घर जाने का फैसला किया। वहाँ उसकी नजर पहली बार अनार परी पर पड़ी। वो जमीन पर बच्चों को कहानी सुना रही थी। उसके बाल चांदनी की तरह दिमक रहे थे और पर नर्म हवा में झिलमिलाते थे। शहजादा अयान इस मंजर को देखकर चंद लम्हे के लिए बोल ही न सका। दिल ही दिल में उसने सोचा, ये कोई आम हस्ती नहीं, ये तो जादुई रोशनी है। अयान ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम ही वो हो जिसे लोग अनार परी कहते हैं? नौरीजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मगर मैं बस सबकी बेटी हूँ। मुझे अनार परी कहना लोगों का प्यार है। उसकी सादगी और नरमी ने अयान के दिल पर गहरा असर डाला। उस दिन से वो अक्सर गांव आने लगा। कभी वो बच्चों को तीरंदाजी सिखाता, कभी खेतों में मदद करता। आहिस्ता आहिस्ता अयान और नौरीजा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नूरीजा और अयान अक्सर दरिया के किनारे बैठते। वो अपनी सदियों पुरानी कैद की कहानी सुनाती और अयान हैरानी से सुनता। एक दिन अयान ने कहा, नूरीजा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जंगें जीती हूँ, मगर दिल की जंग हमेशा हारा हूँ। तुमसे मिलकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मिल हो गई है। नूरीजा शर्मा गई, मगर उसकी आंखों में खुशी थी। उसके दिल में भी पहली बार किसी के लिए नरमी और चाहत जागी थी, मगर ये खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकीं। माया ने अपने काले आईने में देख लिया कि शहजादा और अनार परी करीब आ रहे हैं। उसने गुस्से से अपनी किताब को बंद किया और कहा, ये मुमकिन नहीं। अगर रोशनी और ताकत इकट्ठी हो गई तो मेरा अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे इन्हें जुदा करना होगा, चाहे इसके लिए कत्ल ही क्यों न करना पड़े। माया ने उस रात एक खौफनाक तूफान भेजा। आसमान सुर्ख हो गया, बिजलियां कड़कने लगीं, गांव के लोग चीखने लगे। अचानक जमीन से स्याह सांप निकालने लगे जो घरों के दरवाजे तोड़ने लगे। नूरेजा ने अपने पर फैलाए, मगर वो अकेली थी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगी, माया की आवाज गूंजी, नूरेजा, मैं तुझे अब खत्म कर दूंगी। इस बार कोई नहीं बचा सकता। अयान अपनी तलवार के साथ दौड़ा और नूरेजा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माया, अगर तुझे अनार परी को छूना है तो पहले मुझे मारना होगा। माया हंस पड़ी, एक इंसान मेरी ताकत का मुकाबला करेगा? अहमक। मगर अयान के दिल में एक नया जज्बा था। ये जज्बा मोहब्बत था, और मोहब्बत का हथियार किसी भी काले जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। वो नूरेजा की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। नूरेजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे यकीन हुआ कि शायद ये शहजादा वाकई उसके मुकद्दर का हिस्सा है। रात की सियाही ने आसमान को ढांप रखा था। बादलों में बिजली कड़क रही थी और गांव खौफ से कांप रहा था। हर तरफ अंधेरा और दहशत छाई हुई थी। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार जादूगरनी माया सदियों से कर रही थी। माया अपने काले किले से निकली। उसका कद बढ़कर आसमान को छूने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसके सिरे पर सियाह शोले लपक रहे थे। उसने गरजदार आवाज में कहा, नूरीजा, आज तेरा अंजाम होगा। इस बार कोई इंसान, कोई दुआ, कोई मोहब्बत तुझे बचा न सकेगी। माया ने अपनी छड़ी हुआ में घुमाई। जमीन फटने लगी, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे, सियाह साये गांव वालों को घेरने लगे। नूरीजा ने अपने पर फैलाए, मगर उसकी रोशनी मध्यम हो रही थी। सदियों की कैद ने उसके जादू को कमजोर कर दिया था। उसने दुआ की, मगर माया का काला मंत्र ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। नूरीजा के कदम जमीन से जम गए और उसके पर बोझल हो गए। माया कहकहा लगाती हुई बोली, देखा, रोशनी हमेशा अंधेरे के आगे झुक जाती है। अचानक शहजादा अयान आगे बढ़ा। उसकी तलवार में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो नूरीजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, माया, तू गलत है। रोशनी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत अंधेरे से बड़ी ताकत है। माया ने उस पर तंजिया हंसी छोड़ी, मोहब्बत, ये भी कोई हथियार है? अयान ने तलवार बुलंद की और कहा, हाँ,
मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। उसने तलवार को जमीन में गाड़ा और बुलंद आवाज में नौरीजा का नाम पुकारा। इसी लम्हे नौरीजा के दिल में एक अजब सी तवानाई जागी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं से रोशनी फूट रही थी। नौरीजा ने अय्यान की तरफ देखा। उन दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। रोशनी और मोहब्बत की लहर इतनी तेज थी कि आसमान पर मौजूद बादल फटने लगे। बिजलियों की जगह सितारे झिलमिला उठे। माया चीखने लगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये ताकत कहाँ से आई? नौरीजा ने नरम मगर पुरअज़्म आवाज में कहा, ये ताकत मोहब्बत की है और मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। वो अय्यान के साथ खड़ी हो गई। उन दोनों ने हाथ मिलाए। उनकी रोशनी और हिम्मत ने मिलकर एक सुनहरी दायरा बनाया। वो दायरा बढ़ता गया और फिर माया को घेर लिया। माया का काला जादू टूट गया। वो चीखती रही, मगर रोशनी ने उसे एक धुएं के बादल में बदलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। माया के खत्म होते ही गांव पर छाया अंधेरा हट गया। दरख्त फिर से हरे भरे हो गए। परिंदे गाने लगे और आसमान पर चांद पूरी आबोताब से निकल आया। लोग अपने घरों से बाहर आए और खुशी से तालियां बजाने लगे। अनार परी बच गई, शहजादे ने हमें बचा लिया। सब खुशी से नारे लगाने लगे। नौरीजा ने अय्यान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे अंधेरों से बचाया, तुमने मेरी जिंदगी को नया मतलब दिया। अय्यान मुस्कुराया, और तुमने मुझे मोहब्बत सिखाई। अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिन बाद गांव वालों ने एक शानदार तकरीब मुनक्किद की। हर दरख्त रोशनियों से जगमगा रहा था। फूल खुद बखुद खुलते जा रहे थे और परिंदे खुशी के गीत गा रहे थे। नौरीजा सुनहरी लिबास में अपने शफाफ परों के साथ ऐसी लग रही थी जैसे खुद चांदनी जमीन पर उतर आई हो। अय्यान शहजादे की शान में मगर आजिज़ी से उसके साथ खड़ा था। जाहिद, जिसने उसे बेटी की तरह पाला था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोला, ये वो दिन है जिसके लिए मैंने दुआ की थी। मेरी बेटी को उसका नसीब मिल गया। परियों ने आसमान से फूल बरसाए, शादी के मंतर पढ़े गए और यूं अनार परी और शहजादा अय्यान का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। इस दिन के बाद अनार परी और शहजादा अय्यान ने मिलकर रोशनी और नेकी की हिफाजत का वादा किया। उनकी मोहब्बत की कहानी गांव वालों के गीतों में सुनाई जाने लगी। बच्चे जब अनार देखते तो खुशी से कहते, ये अनार परी की याद है। यूं अनार परी की सदियों पुरानी कैद खत्म हुई और वो अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा के लिए आजाद हो गई।